نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے، چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ دارالفتہ اہل سنت میں ایک بار پھر آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ ابتداً درود پاک کی فضیلت عرض کی جاتی ہے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ جس نے صبح اور شام مجھ پر 10 مرتبہ یعنی 10 ٹائم درود پاک پڑھا، اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل ہمارا یہ سلسلہ علم دین کے پھولوں سے مزین ہوا کرتا ہے، اور گھر بیٹھے ہم بہت سارے مسائل سیکھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ مہر کے حوالے سے آج بھی انشاءاللہ عز و جل اس سے متعلق ہم کچھ کالز شامل سلسلہ کریں گے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، ان سلسلوں کی برکت ہے کہ بہت سارے مسائل آج ہمیں گھر بیٹھے سیکھنے کو ملتے ہیں۔ تو لہذا میرے مدنی چینل کے وہ ناظرین جو اس وقت سلسلے میں شامل ہیں، آپ اسے دیکھ رہے ہیں، توجہ کے ساتھ دیکھیے، توجہ کے ساتھ سنیے، اگر ممکن ہو تو اس کے اہم مدنی پھول تحریر کیجئے، انشاءاللہ عز و جل ایک علم دین کا خزانہ تیار ہو جائے گا جو آپ کو بعد میں بھی کام آئے گا۔ اس سلسلے میں ہم کالز اور ایس ایم ایس شامل کرتے ہیں اور آج بھی کریں گے۔ آئیے آپ کی کال سے ہم سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ سوال یہ ہے ہمارا کہ عورت اگر فوت ہو جاتی ہے تو اس کا حق مہر رہ جاتا ہے، تو حق مہر جو ہے وہ دیے کس کو جایا جاتا ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، عورت فوت ہو گئی تو اس کا حق میرا اگر شوہر پر ہے کہ وہ دے گا تو اب کس کو دے گا؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کسی عورت کا انتقال ہوا اور اس کا مہر اس کے شوہر نے اس کی زندگی میں اسے نہیں دیا تھا، تو وہ مہر شوہر کے اوپر واجب ادا ہی رہے گا۔ ٹھیک ہے، تو اب یہ ہے کہ عورت کے جو ورثہ ہیں، ان ورثہ میں جہاں اس عورت کی اپنی پراپرٹی، روپے پیسے، زیورات، جہیز کا سامان، برتن، کپڑے، اس طرح جو بھی چیزیں عورت کی ملکیت میں تھیں، جہاں وہ ورثہ کی طرف جائیں گی اور جو شرعی احکامات ہیں ان کے، تو اسی طرح جو عورت کا مہر شوہر کے اوپر لازم تھا اور شوہر نے اس کو اس کی زندگی میں نہیں دیا تھا، تو وہ مہر کی رقم بھی وہ وراثت کے احکام اس میں جاری ہوں گے۔ صحیح۔ اب عورت کا جو کفن دفن کا خرچہ ہے، تجہیز تکفین کا خرچہ، یہ شوہر کے اوپر لاگو ہوتا ہے، تو یہ عورت کے ترکے میں سے نہیں کیا جائے گا۔ صحیح۔ اب دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ عورت نے کسی سے قرض لیا ہوا تھا، تو عورت کے ترکے سے قرض کی ادائیگی کی جائے گی۔ صحیح ہے۔ عورت نے اگر کوئی وصیت کی تھی تو قرض اگر تھا تو وہ ادا کرنے کے بعد جو مال بچے گا تو اس بقیہ مال میں سے عورت کی جائز وصیت اگر اس نے کی ہو تو وہ وصیت پوری کی جائے گی، اور اس وصیت کی تکمیل ورثہ پر 1/3 تک جو اس نے مال چھوڑا ہے اس کی 1/3 ویلیو تک اگر عورت نے کوئی وصیت کی ہے تو اس کو نافذ کریں، پورا کریں۔ اس کے بعد جو بچے گا وہ مال ورثہ میں تقسیم ہوگا۔ تو اب اس عورت کے ورثہ میں اگر اس عورت کے والدین زندہ ہیں تو وہ بھی وارث بنیں گے، اس عورت کے اپنے بیٹے بیٹیاں ہیں وہ بھی وارث بنیں گی، اولاد، شوہر ہے تو وہ بھی وارث بنے گا۔ تو اولاد ہونے کی صورت میں عورت صاحب اولاد ہو اور اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے شوہر کو وراثت میں 1/4 حصہ ملتا ہے، عورت کے کل ترکے کی 1/4 اس کو ملے گی۔ اس صورت میں آدمی دیکھ لے صحیح کہ بالفرض 50,000 روپے مہر تھا تو 50,000 روپے کے
4 हिस्से होंगे। सही। तो जो 12,500 रुपये, ये 50,000 की 1/4, ये 25% हिस्सा। सही। तो ये चौथा हिस्सा शोहर अपने पास रख ले, बाकी दे। बकिया जो 37,500 रुपये बनेंगे, तो ये औरत के जो वरासा हैं, उसमें बेटा बेटी, उसके औरत के वालिदैन हैं, तो शरई रहनुमाई लेकर कि किस वारिस को उस औरत के विरासत में से किसको कितना कितना हिस्सा दिया जाएगा, तो वो यूँ तकसीम हो जाएगा। मदीना शरीफ के नाज़रीन गौर फरमाइए कि हमारा जो मज़हब इस्लाम, दीन, हमारी शरीयत है, कितना खूबसूरत ये एक अंदाज़ हमें पता चला कि अगर ज़ौजा का इंतकाल हो गया और शोहर ने उसका मेहर अदा नहीं किया, तो अब ये जो मेहर था उस पर वाजिब रहेगा, और ये जो औरत थी उसका जो कि माल विरासत के अंदर इसको प्लस कर दिया जाएगा। फिर शरीयत के मुताबिक जो मुफ्ती साहब ने उसकी तकसीम बयान की, उसके मुताबिक ये तकसीम हो जाएगा। अच्छा मुफ्ती साहब, जहन में सवाल आ रहा था, ऐसा बहुत कम होता है, मतलब कि शादी के कुछ ही अरसे बाद औरत का इंतकाल हो जाए, ऐसा तो ज़ाहिर है इक्का दुक्का ही वाक़यात होते होंगे, बंदा ज़ाहिर हो जाती हैं। हाँ, तलाक़ें हो जाती हैं, या अगर बिलफर्ज ज़िंदगी एक जोड़ा अगर इसने लिया भी, तवालत ली, तो क्या इतना मौखर इसको जो किया जाता है कि यहाँ तक बात पहुँची कि अब शोहर ने दिया नहीं था, बीवी का इंतकाल हो गया, क्या फरमाएंगे? देखें, एक आदमी है, उसको जिस तरह वो दीगर अपने एक समझदार आदमी की मिसाल दूंगा, वो तो अपने ये कहे लिस्ट बना लेता है कि इतनी रकम मुझे लोगों से लेनी है, वसूल करनी है, और ये वाले कॉलम में जितने अफराद के नाम लिखे हैं, उनकी आगे रकमें लिखी हैं, ये मुझे देनी है। तो आम तौर पे हर आदमी जो कर्ज लेता है तो बाकायदा एक टाइम मुकर्रर करता है, उस वक्त के अंदर वो कर्ज की अदायगी करने में अनथक मेहनत मुशक्कत करके कर्ज अदा कर देता है। सही। तो यूं ही औरत का जो मेहर है, जब निकाह हुआ तो निकाह में नॉर्मली जो हमारे यहाँ निकाह होते हैं, तो इसमें कोई टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं होता कि 6 महीने में, साल में, 10 साल में, 20 साल में अदा करना है। सही। या तो देने वाले फिलफोर टोटल मेहर दे देते हैं कि वो 5,000, 10,000 जो आमतौर पर मेहर होता है, तो वो तो फिलफौरी लोग अदा कर देते हैं। अब 25,000, 50,000, 1 लाख, इस तरह के मेहर के लिए आमतौर पे कोई टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं किया जाता। अब अगर टाइम पीरियड मुकर्रर नहीं भी हुआ, तो इसका ये मतलब हरगिज नहीं है कि शोहर ज़हन बना ले कि देना ही नहीं है। एक देने वाली चीज़ है, औरत की तरफ से आपको ये समझें आसानी मिली है कि वो फिलफौर उसने मुतालबे की शर्त नहीं लगाई थी, टाइम के मुताबिक वो आप जब चाहें दे दें, लेकिन अपने जहन में रखें, इसको भी लिस्ट में शामिल करें, बिल्कुल इसको जगह दें कि ये भी मुझे देना है। आम तौर पे बीवी का ये मेहर, इसको तो समझो मतलब देना है नहीं देना, वो बेला फुसला के माफ करवा लेंगे, इस तरह की बातें करते हैं, कोशिशें भी करते हैं। तो इस तरह नहीं करना चाहिए, इसको भी जगह दें, इसको भी एक कॉलम का बाकायदा हिस्सा। और बेहतर यह है कि आहिस्ता आहिस्ता कतरे कतरे से जिसमें समंदर बन जाता है, तो यूं ही कतरे कतरे से टंकी खाली भी हो जाती है। तो इसी तरीके से 1 लाख रुपए, 50,000, 25,000 जो भी आपने मेहर मुकर्रर किया था, तो हर महीने जहां औरत को आप जेब खर्ची के तौर पे 1,000-500 जिस तरह दिए जाते हैं घरेलू अखराजात के अलावा भी, बस औकात यूं सूरत बनती है, तो इसी तरह 1,000 का नोट आप हर महीने ज़हन बना लें कि मैंने इस तरह इसको देना है। तो 2.5-3 साल 4 साल के अंदर अंदर आराम से बआसानी एक मेहर की बड़ी रकम भी अदा हो जाती है। तो यूं कर लें, या कोई BC आप डालते हैं, कमेटी डालते हैं, तो इस तरह की कमेटी जिस तरह दीगर चीज़ों के हवाले से आप जहन बनाते हैं कि ये कमेटी मैंने फलां के नाम और फलां काम के लिए डाली है, तो यूं ही एक कमेटी, एक BC बीवी के मेहर की अदायगी के लिए डाल दें। सही है, ताकि वो खातून भी पुर उम्मीद रहे कि मुझे मेरा हक के मेहर अदा किया जाएगा। और ये चूंकि शोहर पे वैसे भी वाजिबुल अदा तो है ही, तो इसलिए इस मामले में गफलत ना करें। क्योंकि अगर होता ये है, मेरे जिम्मे अगर किसी का कर्जा है, अगर मैं उस कर्ज की अदायगी में पसो पेश से काम ले रहा हूँगा, तो मुझे क्या उम्मीद है कि मेरे मरने के बाद मेरे वरासा वो कर्ज खा को कर्ज अदा कर देंगे। कर देंगे। होता यह है कि 1 अनार 100 बीमार
वाला मामला तरके में तो हो रहा होता है, सही। इधर तो जीते जी मतलब बाप जल्दी मर जाए, ये रुका हुआ, इस वजह से विरासत तकसीम नहीं हो रही। हालात ऐसे भी हैं, सही है, कि अपने अब जैसे नॉर्मल विरासत के सवाल पूछने के लिए दारुल इफ्ता लोग आते हैं, हमें बड़ा ताज्जुब होता है उनकी सोच पर। अल्लाह बस औकात वालिद साहब को भी साथ लाए हुए होते हैं। अल्लाह अकबर। ये मुफ्ती साहब इंतकाल तो किसी न किसी का कभी भी हो सकता है। अगर वालिद साहब का अल्लाह ना करे, अब वो सवाल में इस तरह अल्लाह ना करे, खुदा ना खास्ता, अगर इनका इंतकाल हो जाता है तो इनका तरका कैसे तकसीम होगा? अल्लाह, तो हम ये कहते हैं कि भाई क्या अभी गुजरती होगी, वालिद साहब साथ ही बैठे हैं और बेटा। ये कहते हैं कि इस वक्त वो जिंदा है। जिंदा आदमी के माल में उसके किसी भी वारिस का जो आइंदा बनने वाला है, जब तक ये हयात है, किसी का 1 टके का भी हक नहीं बनता। अल्लाह। अब उस वालिद की मौजूदगी में उसी के बारे में कि अगर इंतकाल हो जाए, आंखें बंद हो जाएं, तो फिर क्या होगा? अल्लाह। अरे तुम्हारी आंखें बंद हो जाए इससे पहले तो क्या? तुम्हारी आंखें बंद होने पे तुम्हारे अब्बा वारिस बनेंगे, वो कभी नहीं पूछने आते। सही। यानी आप ये देखें, बाप का ये ज़र्फ होता है कि वो कभी ये पूछने नहीं आएगा कि मेरे बेटा बड़ा करोड़पति है, अरबपति है, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो मेरा कितना हिस्सा होगा? क्या बात है। कभी बाप पूछने नहीं आता, कभी माँ पूछने नहीं आती। ये औलाद है, और अक्सर ऐसी औलाद मैं समझता हूँ दीन की तालीम से दूर होती है। सही बात। दुनिया दुनिया दुनिया, बस इसी उनका ओढ़ना बिछोना होता है। उनके लिए माल ये सबसे बड़ी चीज़ है। अब अब्बा वो आज नहीं कल चले जाएंगे, माल तो इन्होंने छोड़ना ही है। तो ये सोचें नहीं होनी चाहिए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि इस वक्त हालात ये हैं कि मैं अगर अपना वाजिबुल अदा कर्ज खुद अदा नहीं करूंगा तो मुझे क्या उम्मीद है कि मेरी औलाद अदा कर दें। सही बात। तो अब जिस औरत का तरका आपने जीते जी अदा नहीं किया, उसका इंतकाल हो गया, तो लोग जिस तरह एक लाइफ में एक पार्टनर था वो चला गया, खत्म हो गया, तो वो समझे सारी चीजें ही, मेहर भी गायब हो जाता है। सही बात। तो मेहर अदा करना शोहर पे फिर भी लाजिम होता है। उस वक्त जितने वरसा होंगे उन वरसा को अदा करें। और अगर शोहर का इंतकाल हो जाए और उसने मेहर अदा नहीं किया था, तो शोहर के तरके में जहाँ दीगर कर्ज की अदायगी को मुकद्दम किया गया है, वरसा की विरासत में हिस्सेदारी से पहले कर्ज अदा किया जाएगा मरने वाले का, तो वहीं मेहर को भी उस कर्ज में जगह दी जाएगी कि पहले उसका मेहर अदा किया जाएगा, बाद में तरके की तकसीम होगी। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने मज़ीद तफसील से इसको भी वाज़ेह किया कि हमें ज़िंदगी में इसकी अदायगी के हवाले से क्या कोशिश करनी चाहिए, हमारा जहन क्या होना चाहिए। और जहां हम कर्ज लेने के हवाले से लिस्ट बनाते हैं, तो कर्ज देने के हवाले से भी अगर बनाते हैं तो उसके अंदर मेहर को भी जगह दें। और उसका तरीका भी बताया आपने कि किस तरह हम इसको जल्दी अदा कर सकते हैं, क्योंकि ये मर्द पर, शोहर पर वाजिब हुआ करता है। मदीना शरीफ के नाज़रीन, विरासत के हवाले से भी गुफ्तगू फरमाई मुफ्ती साहब ने, और इसमें मौजूदा हालात जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में जो आते हैं लोग, ये भी साथ में बयान फरमाया कि वालिद की मौजूदगी में भी उनकी मौत की गुफ्तगू कर रहे होते हैं, आंखें बंद, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करके। बहुत ही अफसोसनाक बात है। बड़ा अफसोस हुआ इस बात पर कि इस तरह के हालात हमारे माशरे में पैदा हो चुके हैं। अल्लाह ताला औलाद को अपने वालिदैन का फरमाबरदार बनाए। और यहाँ पर मैं बिलखुसूस वालिदैन को भी नेकी की दावत पेश करूँगा। 100% ऐसा नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है कि जो वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तालीम के हवाले से, दीनी तरबियत के हवाले से तवज्जो नहीं देते, फ़कत उनकी तवज्जो दुनिया की तरफ ही होती है कि हमारा बेटा जो है डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए और दुनियावी तौर पर काबिल बन जाए और किसी मनसब पर फाइज हो जाए। तो बाज़ औक़ात इस तरह के हालत पैदा हो जाते हैं कि जब अपनी औलाद को अपनी दीनी शऊर ही नहीं दिया, इल्म दीन जो है उसको नहीं मिला, तो ज़ाहिर है वो फिर इसी तरह के मामलात के अंदर गिरफ्तार हो जाता है। तो लिहाजा जहाँ पर हम अपनी औलाद की तरबियत के हवाले से दुनियावी तौर पर सोचते रहते हैं कि इसके अंदर यह काबिलियत पैदा हो जाए, ये इस फन में माहिर हो जाए, वहीं कोशिश करके दीनी शऊर भी पैदा किया जाए। और अल्लाह की रहमत है, मैं ये कहूँगा कि इस वक्त दावत इस्लामी का मदनी माहौल हमारे सामने मौजूद है, जो एक बच्चे से लेकर एक बूढ़े तक, ये जितने भी स्टेज बनते हैं उम्र के, अल्हम्दुलिल्लाह सबकी तरबियत कर रहा है। तो आप दावत इस्लामी में ख़ुद भी आएँ और अपनी औलाद को भी इसके अंदर जो इसके तरीक़े कार है उसके मुताबिक, जामियतुल मदीना है, मदरसतुल मदीना है, दीगर इदारे हैं, उसमें अगर तरकीब बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ये औलाद आपकी आँखों की ठंडक बनेगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। जी अगली कॉल लेंगे हम सिलसिले में।
मुफ्ती साहब की बारगाह में एक सवाल है कि अभी माशाअल्लाह बहुत ही प्यारा सिलसिला दारुल इफ्ताह अहले सुन्नत चल रहा है, अल्लाह पाक इस सिलसिले को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। ये सवाल था कि अगर मेहर देनी है तो केस में ही देनी पड़ेगी या उसके बदले में कोई चीज दे दे, कपड़े है या कोई भी चीज दे दे उस उतनी कीमत की तो चलेगा? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। क्या फरमाते हैं, नोट ही देने, रकम देनी है या कुछ भी हम दे सकते हैं? असल जो मेहर तय हुआ, अगर रुपए पैसे तय हुए हैं तो असल तो वो रुपए पैसे, जैसे मिसाल के तौर पे 25,000 रुपए अगर तय हुए हैं तो वो 25,000 रुपए ही मेहर में असल हैं। ठीक है। अब औरत का, ये औरत को इख्तियार है कि वो अगर अपने शोहर से कहती है कि आप 25,000 रुपए के बजाय सही मुझे फला जो इतने तोले माशे का कोई जेवर दे दें, सही है, तो अगर औरत उस जेवर पर सुलह कर लेती है और शोहर उतनी ही मालियत का कोई जेवर औरत को दे देता है, या कपड़े या दीगर चीज़ों की औरत फरमाइश करती है, और आजकल तो मोबाइल जैसी चीज़ों का भी फरमाइशें हो रही होती हैं, तो अगर बिल फर्ज औरत ने कोई और चीज़ लेने पर एग्री हो गई कि 25,000 की जो मेहर की मिकदार थी इतनी मालियत, अब वो चाहे मालियत 25,000 रुपए से कम हो ज्यादा हो, अच्छा ये आपस में औरत को और शोहर को इख्तियार है कि जिस चीज पर भी औरत सुलह कर ले, सही, तो शोहर अगर वो चीज़ औरत को दे देता है और औरत उसको बतौर मेहर कबूल कर लेती है तो यूं भी मेहर की अदायगी हो सकती है। ठीक है। अब इसकी सूरत यूं भी हो सकती है, जैसे औरत को 10,000 रुपए की ज़रूरत है, 10,000 का उससे कोई चीज़ लेनी है, तो शोहर से कहती है कि 25,000 रुपए में से 10,000 रुपए आप मुझे दे दें, या ये है कि शोहर से कहे कि ये चीज़ आप मेरे लिए लेकर आ जाएं, इसको मैं मेहर में शुमार कर लूंगी, और शोहर वो चीज लाके औरत को दे देता है। सही है। तो गोया 25,000 रुपए में से 10,000 रुपए की अदायगी हो गई। अब बकिया 15 की अदायगी की कोशिश जारी रखें। ये भी पता चला कि अगर 25,000 रुपए तय हुए थे तो औरत को ये इख्तियार है कि वो अपनी डिमांड सामने रख सकती है कि आप मुझे ये दे दें, तो यूं भी ये सिलसिला हो जाएगा। जी अगली कॉल। सर मैंने पूछना है कि मैं टेलर का काम करता हूँ, तो इसमें से जो थोड़ा पीस बच जाते हैं वो हम ग्राहक को इसलिए वापस नहीं करते क्योंकि वो फिर शक करते हैं कि शायद हमारा सूट पीस बच गया है तो थोड़ा गड़बड़ हो गई है, या फिर वो अगली दफा जो है ना वो पीस कम लेकर आते हैं, या फिर अगर फिर मुतालबा करते हैं कि मैं अब दोबारा पीस तो पिछली दफा भी दिया था, तो ये अगर इस दफा तो बच गया, हो सकता है अगली दफा ना बचे तो फिर हम कहाँ से उसको पीस देंगे जो बच जाते हैं। तो बराए मेहरबानी इसका रहनुमाई फरमा दें कि जो पीस बच जाते हैं उसकी शरई हुक्म क्या है। वैसे इसमें हम ये कह सकते हैं मुफ्ती साहब, उर्फ कहा जा सकता है, क्योंकि अमूमन हम ये देखते हैं कि जिसको हम कपड़ा देते हैं तो वापसी अमूमन कपड़ा मिलता नहीं है, मतलब वो सूट बन गया। देखिए इसमें सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि मिसाल के तौर पे जैसे नॉर्मल एक आदमी है, उसका 7 मीटर या बड़े अर्ज का है तो 4 मीटर कपड़े में सूट बन जाता है। तो अब उसमें जो बचने वाला जो पीस होगा वो कितना होगा, वो कतरनों की सूरत में बेतरतीब सा रह जाने वाला वो आइटम है। अगर वो उसको देगा भी दर्जी सही कि भाई ये आपका सूट है और ये बची हुई कतरने हैं सही, तो वो ये कहेगा भाई सफाई सुथराई में काम ले आना। तो अगर वो बिल्कुल बराए नाम कतरने हैं सही और जो सिलवाने वाला है वो मुतालबा नहीं करता और दर्जी अगर रख लेता है तो इसमें हरज नहीं है सही। लेकिन अगर कोई वाकईतन बड़ा पीस बच रहा है सही, अब इसको अगर हम ये कहेंगे बिल्कुल साफ सुथरा सा, अगर कोई आधा मीटर का पीस बचा है तो आधा मीटर का पीस, 1 मीटर का पीस, ये ऐसा कपड़ा है, ऐसी मिकदार है कि जो आम तौर पे लोग छोड़ते नहीं है। जैसे इसका रुमाल भी बन सकता है, जैसे जेब का रुमाल होता है, ये भी अगर आप खरीदने जाएं तो 50-60 रुपए से कम नहीं मिलता। तो इस तरह यानी ऐसा इस्तेमाल उसका है, ऐसा पीस के जो बकायदा लोगों की डिमांड होती है। अगर खवातीन से पूछें तो वो आमतौर पे कट पीस बड़ी ढूंढ रही होती हैं। तो एक आधे मीटर के भी उनको कोई पीस मिल जाए तो बच्चियों के इतने प्यारे से सूट बना देती हैं। सही बात है। तो मर्दों का मामला आमतौर पे ऐसा है कि वो चूंकि आम दर्जी से, टेलर से मर्द हजरात इतना मुतालबा नहीं करते हैं। खवातीन के अंदर ये चीज ज्यादा है कि अगर उनको आधा मीटर का भी पीस मिल रहा होगा
तो उन्होंने दर्जी के पास छोड़ना नहीं है, सही, उन्होंने अपने घर में बच्चों के छोटे मोटे कपड़े बना देने होते हैं, मुख्तलिफ डिजाइन तो के अब ये है कि बिलखुसूस जो अगर ऐसी, ये दर्जियों को भी पता होगा, सही बात कि इस फील्ड के लोगों को कि कस्टमर का कौन से कितने बड़ी मिकदार का मुतालबा होता है, सही, तो जितनी बड़ी मिकदार का मुतालबा है वो तो देना ही होगा। और अगर वो बिल्कुल कतराने रह जाती हैं तो ये दर्जी साहब खुद से कहें भैया आपका कपड़ा बचा है, क्या करना है, तो अगर लेने वाला होगा तो वो ले लेगा, सही है, वरना वापस कर देगा। अब इनको ये जो खदशा है कि अगर हमने अभी इसको दे दिया कि भाई आपके पीस में से इतना बचा है, तो अगली दफा नहीं बचा, सही, तो फिर वो मांगेगा कि पिछली दफा बचा था तो अब क्यों नहीं बचा। सही, तो देखें कोई कद इतनी जल्दी बड़ा नहीं हो जाएगा। सही है, दूसरा ये है कि अगर वो वॉशिंग वेयर या कॉटन का थोड़ा फर्क हो सकता है कि वो शिरिंग होने से थोड़ा सुकड़ गया, वो वॉशिंग वेयर नहीं होता, सुकड़ता नहीं है, या ऐसा कोई फर्क है, या उसने कोई डिजाइन इतने ज्यादा हैवी या कपड़े इतने ज्यादा लूज और उसमें चुने इतनी डलवा दी हैं, तो लाजिमी बात है उसमें कपड़ा ज्यादा खर्च होगा। सही है, तो ये चीज आप उसको समझा सकते हैं। सही है। बाकी ये जो खदशा है कि अगर हमने एक दफा उसको कट पीस वापसी कर दिया तो बार बार वो डिमांड करेगा, 1000 दफा भी अगर कोई आपसे कपड़े सिलवाता है और 1000 दफा कट पीस बचता है, सही है, तो आप उसको देना पड़ेगा, देना होगा। अगर वो मुतालबा करता है तो देना होगा। सही। तो अब ये है कि ये इस खदशे के पेश नजर आप देते ही नहीं है, और वो वाजे इतना बड़ा पीस है जिसकी तरफ लोगों का मैलान होता है कि भाई ये पीस तो मुझे वापसी लेना है, सही, तो आपको देना पड़ेगा। सही। तो इस खदशे के पेश नजर के हमारा एतमाद उठ जाएगा, तो एतमाद यूं उठ रहा है, सही है, कि आप दे ही नहीं रहे। तो इस तरह ना करें। आप एक दफा अगर किसी को उसका बचा हुआ, चाहे वो बेतरतीब सी कतरने हो या कोई बड़ी मिकदार में जिसकी तरफ लोगों का मैलान होता है कि ये पीस छोड़ना नहीं चाहिए तो अपने साथ देना चाहिए, तो आप दे दें। सही। जहां आप कपड़े देते हैं तो वहीं ये पीस भी उसको अगर आप दे रहे हैं तो इसमें आपका ही एतमाद उस कस्टमर के दिल में बढ़ जाएगा कि भाई ये बची हुई कतरने भी वापसी दे रहा है, यानी इतना इसको खौफे खुदा है। वरना आमतौर पे तो इस तबके के बारे में लोगों के बड़े अजीब व गरीब मुहावरे हैं कि भाई ये जब लड़ाई झगड़ा कभी ऐसा हो जाए इस फील्ड के लोगों से, तो इस तरह के जो भाई ये तो ऐसे लोग हैं कफन में से भी काट लेते हैं। तो यानी ये करने वालों ने इस शोबे को इतना बदनाम कर दिया है कि लोगों ने कफन तक की मिसाल देके इनको डिग्रेड कर रहे होते हैं। तो आप ऐसा अपने अंदर निखार पैदा करें, इस शोबे का एतमाद लोगों पे इतना बहाल कर दें कि भाई हम 1 इंच भी अगर कपड़ा बचता है तो वो भी पेशकश करते हैं, अब कोई नहीं लेता तो हमें दे देता है, वरना हम तो देते हैं। सही। तो जहां आप कपड़े दे रहे हैं प्रेस करके मुकम्मल फाइनल, तो वहीं एक छोटी सी शॉपर में बचा हुआ कपड़ा भी साथ में दे दें। सही। माशाल्लाह मुफ्ती साहब ने शरई मसले के साथ उस मजीद मद्दी फूल भी हमें अता फरमाए कि जो टेलर मास्टर होते हैं, दर्जी हमारे इस्लामी भाई, उनको मजीद क्या एहतियाती इस हवाले से करनी चाहिए। जी मजीद कौन? दानिश अतारी है, मैं लाहौर से बोल रहा हूँ। मेरा ये सवाल था कि ज़कात देने वाले के पास कितना सोना और चांदी होना चाहिए? क्या कि अब किसी के पास 3 लाख रुपए हों और वो उसकी जरूरत, तो क्या उस पर ज़कात फर्ज है या नहीं? ज़कात के लिए कितना निसाब ज़रूरी है, और 3 लाख अगर रखे हैं, ज़रूरत के तहत ही रखें, ज़रूरत है तो क्या तब भी ज़कात? इनका सवाल हो सकता है कि कुछ ये ज़रूरत ऐसी बयान करें कि जिस ज़रूरत के तहत हम वाक़ियतन कहें कि ये आपकी ज़रूरत में शामिल है। सही है, वाज़ेह नहीं है। ज़कात के अंदर ये 3 लाख माइनस है। सही है। अब ज़रूरत एक ये हो सकती है कि इनके पास 4 लाख का कर्जा है, ठीक है, तो उस कर्ज की अदायगी के लिए इनको 3 लाख की रकम इन्होंने जमा कर ली है। सही है। और अब ये कर्ज में अगर जाएगी तो ये तो पूरी डूब गई। सही है। तो इस तरह की रकम पे ज़कात नहीं होती। अब इनकी ज़रूरत वाज़ेह नहीं है। सही है। कि ज़रूरत क्या है। अगर ज़रूरत ये है कि बच्ची की शादी करनी है, तो ये ज़रूरत ज़कात की अदायगी में रुकावट नहीं बनती। सही। तो अब ये अपना दारुल इफ्ता अहले सुन्नत फ़ोन कर लें, या इनके करीबी शहर में दारुल इफ्ता मौजूद है तो दारुल इफ्ता हाजिर हो जाएं, अपनी मुकम्मल डिटेल बयान करें, तो इंशाअल्लाह ज़कात के हवाले से इनकी मुकम्मल शरई रहनुमाई की जाएगी। अच्छा, ज़कात का निसाब अगर बयान फरमाएं। ज़कात का जो निसाब है वो 7.5 तोला सोना है या 52.5 तोला चांदी। सही। और अगर ये सोना और चांदी अपनी
मिकदार को पूरा नहीं कर रहे, कुछ सोना है कुछ चांदी है, तो फिर ये देखा जाता है कि सोने और चांदी जो जो इनके पास, जैसे 1 आध तोला सोना है, कुछ तोले चांदी है, तो इन दोनों की मार्केट वैल्यू सही वो क्या बन रही है, और उस वैल्यू में चांदी का निसाब खरीदा जा सकता है या नहीं। मिसाल के तौर पे अगर किसी के पास है 1 तोला सोना है और 10 तोले चांदी है, सही, तो 1 तोला सोना और चांदी, 10 तोले चांदी को अगर हम मिलाते हैं तो ये 870 या 50 रुपए तोला चांदी इस वक्त चल रही है। सही। तो 8 साढ़े 8 हजार रुपए ये 10 तोले चांदी की कीमत बन जाएगी, और सोने की कीमत भी कोई 55-60 जो भी चल रही है, तो अगर इसको मिलाते हैं तो 70,000 तक रकम पहुंचती है, 65-70 हजार तक। तो 65-70 हजार में 52.5 तोला चांदी आसानी खरीदी जा सकती है। सही। तो अब ऐसी सूरत में ज़कात लाजिम होगी। तो अगर सिर्फ और सिर्फ सोना है, सिर्फ और सिर्फ चांदी है, सोने या चांदी के अलावा, यानी सोना है तो ना चांदी है, ना रुपए पैसे हैं, ना प्राइस बॉन्ड है, ना माले तिजारत है, तो जब तक वो 7.5 तोला नहीं होगा ज़कात लाजिम नहीं। ठीक है। इसी तरह चांदी का निसाब 52.5 तोला चांदी है, तो जब तक वो उसके साथ कोई सोना नहीं है, प्राइस बॉन्ड, रुपए पैसे, करेंसी, इसी तरह माले तिजारत अगर नहीं है, तो जब तक वो 52.5 तोला नहीं होगी ज़कात लाजिम नहीं। लेकिन आम तौर पे लोगों के पास कुछ मिकदार सोने की होती है और कुछ मिकदार करेंसी नोट उनके पास होते हैं, तो एक बड़ी तादाद है जिनके ऊपर ज़कात लाजिम हो जाया करती है। ठीक। तो ज़कात का निसाब भी बयान किया गया। मदनी शहर के नाज़िर 1-2 SMS हम शामिल सिलसिला करते हैं। उससे बाज़ औक़ात ये होता है कि जो लड़के होते हैं हमारे नौजवान इस्लामी भाई, बाज़ औक़ात तिब्बी हवाले से या आप कुछ भी कह रहे हैं, बाल सफ़ेद होना शुरू हो जाते हैं, तो ये पूछ रहे हैं कि मेरी उम्र 18 साल है, तो क्या मैं काली मेहंदी वगैरह या कलर इस तरह लगा सकता हूँ? उम्र के लिहाज से या कोई भी ऐसा सबब हो जिसकी वजह से बालों को सफ़ेद होना, यानी बुढ़ापे से पहले ही सफ़ेद हो गए, तो उनको ब्लैक कलर से रंगना जायज़ नहीं है। ठीक है। ब्लैक के अलावा दीगर कलर्स, और आजकल तो वैसे ही लोग फैशन में भी दीगर कलर्स, काले बालों को कलर कर रहे हैं। सही बात है। और ये सफ़ेद बालों को दीगर कलर में अगर ये तब्दील कर लेते हैं, हाँ। तो इसमें हरज नहीं है। अलबत्ता बालों को सियाह रंग से रंगना, चाहे वो काली मेहंदी हो या किसी भी किस्म का केमिकल, कोई ट्यूब इस तरह की जिससे बाल सियाह हो जाते हैं टेम्परेरी, तो इस तरह के कलर लगाने की, सियाह कलर लगाने की इजाज़त नहीं है। अलबत्ता अगर कोई ऐसा जड़ी बूटियों पर मुश्तमिल कोई तेल दस्तयाब हो या वो दवाएं ऐसी मिल जाएं कि जिनको खाने से या तेल सर में लगाने से, मुस्तकिल बुनियादों पे कुछ अरसे लगाने से जड़ों से ही बालों का रंग सियाह होना शुरू हो जाए, सही, तो इसमें हरज नहीं है। सही। बाज़ अद्वियात गालिबन ऐसी होती हैं, जैसे मरीज कोई सा है, दवा कौन सी खा रहा है, तो सफ़ेद बाल उसके सियाह होने लग जाते हैं। अच्छा। अब वो दवा की कोई ऐसी गर्मी है या शिद्दत है, तो बस औकात मरीजों को ऐसा देखा गया है, सही, कि जैसे गुर्दे, किडनी के जो पेशेंट हैं, इनमें बाज़ों को देखा गया सफ़ेद बाल कुछ ना कुछ उनके काले हो जाते हैं, उनके बालों की सफ़ेदी कुछ कम हो गई, यानी सियाही आ गई, तो वो दवाएं थोड़ी ऐसी हैवी उनको दी जाती हैं और उनकी मजबूरी है कि वो दवा लेते हैं, तो उनसे कलर चेंज हो जाता है। तो वो कोई चीज लगाई नहीं है, सही है, तो अपने आप हो गया, खुद ब खुद बाल सियाह ही निकल रहे हैं। सही। तो ऐसी कोई तेल या अद्वियात अगर ऐसे हैं तो उसकी गुंजाइश है। बाकी टेम्परेरी जिसमें कलर लगाया और 10-15 दिन में वो उतर जाता है, फिर लगा रहे हैं, तो ये जो सिलसिला है, सियाह कलर करने की इजाजत नहीं। सियाह के अलावा कोई दूसरा कलर या ऐसा डार्क ब्राउन कलर ना करें जो सियाह लगे, तो इस तरह का भी ना हो। तो मेरे वो इस्लामी भाई जिनकी उम्र अभी कम है, 18 साल 19 साल या इससे भी कम, और उनके बाल अगर सफ़ेद हो रहे हैं, तो मुफ्ती साहब ने बयान कर दिया कि उनके लिए जायज़ नहीं होगा कि वो ब्लैक कलर इस्तेमाल करें। अच्छा हुजूर, SMS ये है कि मुअज़्ज़िन जो अज़ान देते हैं, दौरान अज़ान जैसे मिसाल के तौर पे अल्लाहु अकबर, आप इन दोनों में वक्फ़ा दे दिया, रुक गए, अल्लाह अकबर कहा, तो इससे कोई अज़ान में फ़र्क पड़ेगा? ये गैप अगर दिया, लफ्ज़ अल्लाह और अकबर के दरमियान वो गैप दे दें, देखें अजान के कलिमात तो अदा कर ही रहे हैं, लेकिन जो सुन्नत तरीका है वो यही है मसनून के अल्लाहु अकबर
पूरा बोलें वो एक साथ, पूरा ये जुमला अदा करें। सही। और अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर जी। तो जैसे अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, तो बाज़ इसको कहते हैं अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी। तो रा पे पेश करके आगे इसमें जलालत जो अल्लाह का नाम आ रहा है उससे मिलाते हैं, तो वक्फ करना चाहिए। सही। तो अजान के अंदर जो 2 मरतबा अल्लाहु अकबर को एक ही सांस में बोला जाता है, तो उसमें रा को साकिन करके पढ़ा जाएगा। और अल्लाह के लफ्ज को अलग पढ़ते हैं, अकबर को अलग पढ़ते हैं, तो ये सुन्नत के खिलाफ होगा, तो इस तरह नहीं करना चाहिए। हदीस शरीफ के नाज़रीन, असल में समझाया ये जा रहा है और मकसद भी यही है कि इल्म जो है कदम कदम पर हमारी रहनुमाई फरमाता है। अजान देना भी ये पूरा एक काम है, एक अमल है, और इसकी भी तरबियत, इसको सीखना भी ज़रूरी है। देखा देखी या शौक में कोई माइक पर आ जाए अजान देना शुरू करे, तो इसी अजान के अंदर बाज़ कलिमात ऐसे हैं कि जिनके अंदर अगर गलती हो जाए, और वो गलती ऐसी होती है बाज़ सूरतों में कि कुफर भी हो जाता है, और अगर कुफर ना हो तो फिर वो हराम की तरफ भी चला जाता है मामला। तो इसलिए इसको सीखा जाए, और सीखने के बाद किसी को सुनाकर, कारी साहब या कोई सुन्नी आलिम दीन है, उसके बाद फिर अजान की तरफ भी आएंगे और मुसल्ले पर भी आएंगे जो इमामत की शराइत पाई जाएं। तो हर चीज़ के लिए पूरा शरीयत ने एक तरीक़ेकार वज़ा किया है, इसलिए अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले रखे जाते हैं ताकि हमारे इल्म में इजाफ़ा हो और आइंदा की गलतियों से हम बचने की कोशिश करें। जी, अगली कॉल लेंगे हम। उम्मन घर में जहाँ फैमिली एक साथ रहती हैं, बच्चे भी होते हैं लड़के, और कमाते हैं, सरबराह भी होता है, तो अक्सर घर की चीजें जो खरीदी जाती हैं, बड़ी फ्रिज है, एसी है, और किस्म की जो सोफा सेट वगैरह जो भी खरीदे जाते हैं, तो वो मुश्तरकी होते हैं तकरीबन पैसे। तो अगर अब सरबराह का इंतकाल हो जाए तो क्या इन चीजों को विरासत जो तकसीम होती है उसमें शामिल किया जाएगा, और फिर उसका हिसाब किस तरीके से किया जाएगा, हालिया कीमत से, या जब जिस वक्त खरीदा था, तो अब तो उसके ऊपर इतना वक्त गुजर चुका होता है बाज़ मरतबा कि उसकी वैल्यू बिल्कुल जीरो के करीब भी हो सकती है। बड़ा नाजुक मसला है, क्योंकि घर में ये मुश्तरका चीज़ें जो आती है ना, अब किसी फ़र्द मुअय्यन को मालिक बना देना चाहिए। क्या करना चाहिए ताकि कल को इस तरह का प्रॉब्लम हो तो उसकी तकसीम कारी विरासत। ये कहेगा पंखा तो मैं लेकर आया था, हाँ। तो मैं लेके जा रहा हूँ, एसी मैंने लगवाया था तो वो मैं लेके जा रहा हूँ, तो सीलिंग फैन मैंने लगाया था मैं वो लेकर जा रहा हूँ, तो घर तो मतलब खाली हो जाएगा। तो बहरहाल देखें, इसमें असल ये है कि जो घर के सरबराह हैं, फिर इसी तरह बरसरे रोज़गार बेटे हैं, और घर की ज़रूरत की A to Z बहुत सारी अशिया होती हैं। वॉशिंग मशीन की ज़रूरत थी, वो आ गई, अब्बा किचन के किचन के एक बर्तन हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, पानी की मोटर, पाइप, न जाने क्या क्या चीज़ें, कारपेट बिछा दिया, सोफ़ा सेट लगा दिया। अब देखें, इसके अंदर ये सूरत है कि देने वाला जो शेयरिंग कर रहा है, जैसे इनका सवाल मुश्तरका तौर पे आ रही है, तो एक सूरत ये होती है कि एक मुहज़्ज़ब घराने में बेटा अगर कमा रहा है तो वो अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा या मखसूस एक हिस्सा वो अपने वालिदैन को देता है। सही। और वालिदैन के चूंकि साए में वो रह रहा है, तो वालिदैन अपने घर को चला रहे होते हैं, रन कर रहे होते हैं। तो अब इस मामले में बेटे ने अगर 10,000 रुपये मंथली तय कर लिया कि वो ये भी दे रहा है, तो दूसरा बेटा 5 दे रहा है, तो हर एक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक घर में वो एक जमा करा देते हैं। अब वालदा या वालिद जो भी हैं वो उस रकम को लेके चला रहे होते हैं। अब एक सूरत तो यह है कि रकम देने वाले ने रकम वालदा को दे दी, और वालदा ने उस रकम को ले लिया, और देने वाले को यह है कि बस मैंने वालदा को दे दिया, वालदा मालिक हैं, इन्होंने घर का खर्चा करें, घर की ज़रूरत की चीज़ें लाएं, तो इस तरह बहुत सारी रकमें मिक्स हो जाती हैं। सही। तो अब इसके अंदर यह है कि देने वाले ने अगर मालिक बना दिया वालदा को, इसने भी रकम का मालिक बना दिया वालदा को, वो वालदा अपनी ज़रूरत के हिसाब से जो खर्च होना था वो कर लिया, बकिया रकम से वो फर्नीचर मंगा लिया, सही, बकिया रकम से पानी की मोटर मंगवा ली, बकिया रकम से ये कर लिया। तो इस तरह अगर किसी एक को रकम का मालिक बना दिया और फिर कोई इस तरह की चीज़ें आ रही हैं तो वो चीज़ें फिर उसी की मिल्क होंगी। सही। लेकिन इस तरह का आम तौर पे कोई सराहत नहीं है कि ये हमने रकम क्यों दी थी, तो इसका मालिक बना दिया था वालदा को, या क्या किया था। तो है बड़ा ये पेचीदा नोयत का, वो मुमकिन है कि हर फैमिली का जुदा गाना कोई जवाब हो इस तरह के मामले में कि मैंने ये रकम क्यों दी थी, किस लिए दी थी। तो वालदा ने बीसी डाली, तो बीसी खुलने के बाद वो रकम किसकी है, वालदा का इंतकाल हो गया, वो तरके में जाएगी, या मेरी रकम से, चूंकि वो बीसी भरती थी तो ये सारी रकम मेरी है। तो ये इस तरह के मामलात मसाइल ऐसे हैं जो शायद
अगर अपनी फैमिली के इस तरह के मसाइल पर्सनल अगर हम दारुल इफ्ता से या किसी मुफ्ती साहब से टाइम लेकर उनके पास जाकर पूरी डिटेल बयान करेंगे, भाई ये मामला है, ये मेरा बेटा है, ये यूं देता है, मैं भी कुछ रकम मिला देता हूं, तो ये चीज़ आ गई सही ना मेरे जहन में है कि ये चीज़ में मेरा और इसका दोनों का मुश्तरका हिस्सा है ना, उसके जहन में बस चीज़ें आ गई, तो इसका क्या मसला है। तो मसाइल हैं, तो हर फैमिली के जुदा गाना हैसियत से जवाब हो सकता है कि उसने पैसे क्यों दिए थे, इन्होंने पैसे मिलाए तो क्यों मिलाए, हिस्सेदारी की नीयत से मिलाए, या बेटा पैसे देके बस बाप को मालिक बना देता है, अब बाप जो भी खर्चा कर रहा है तो फिर वो बाप की मिल्क होगा। अच्छा, मैं गौर कर रहा था आपके जवाब के दौरान ही कि अमूमन अगर घर के अंदर एक खुशगवार माहौल हो, एक दूसरे से मोहब्बत है, एक दूसरे का अदब है, अच्छा चीज़ें पेश की जा रही हैं, तो उस वक्त तो बड़ा अच्छा लग रहा होता है, अगरचे इस चीज़ का तयन ना हो, मुअय्यन ना किया जाए। लेकिन जब शादी हो जाती है और फैमिली जब तकसीम की तरफ जाती है और अल्लाह ना करे कोई प्रॉब्लम खड़ी हो जाए, झगड़ा हो जाए, फिर फाइलें खुलती हैं कि ये तो मैंने आपको दी थी, आपको मालिक थोड़ी बनाया था, ये फ्रिज तो मेरा है, ये पंखा तो मेरा है, इस तरह का सिलसिला होता है। लेकिन मैं चाहूँगा कि ज़ाहिर बहुत सारे नाज़रीन हमारे साथ शरीक होंगे, तो क्या मदनी फूल देंगे औलाद को कि जब वो अगर अपने वालिद को या अपनी वालदा को कोई चीज़ देती है तो मतलब वो मालिक बनाना ही है या क्या है इस हवाले से। अगर जैसे घर की कोई इस्तेमाल की चीज़ में लेकर आ रहा होता हूँ तो अक्सर मेरी जो तरकीब रहती है वो घर वालों को मालिक कर देता हूँ। सही। जैसे किचन का सामान बहुत सारे लेकर आने होते हैं, ज़रूरत की चीज़ें लेकर आया 6-8 चीज़ें, भैया आप मालिक हैं। सही। ये चीज़ लाया और वो घर की इस्तेमाल की चीज़ें हैं, सही। तो अब उसको उनका मालिक, चूँकि वो अकेला मैं ही ला रहा हूँ तो मैं मालिक बना के गोया अपनी मिल्कियत से खारिज करके उनकी मिल्कियत कर। सही। अब यहाँ मामला ये है कि मुश्तरका, सही, मुश्तरका तौर पे पैसे आ रहे हैं, मुश्तरका तौर पे चीज़ खरीदी जा रही है, तो ये थोड़ा सा एक पेचीदा मामला है। तो हर घर का जुदा गाना ही शायद मसला बनेगा। चले कुछ ना कुछ हमने गुफ्तगू करने की कोशिश की ताकि जो मदी चल के नाज़रीन को कुछ जहन तो मिले, कुछ मदनी फूल मिले कि हमें घर के अंदर जो इस तरह हम शेयरिंग करते हैं चीज़ों के अंदर, तो हमें इसमें क्या नियत कर लेनी चाहिए अपने वालिदैन के लिए कि हम वालिदैन को अगर पेश करते हैं तो उन्हीं को मालिक बना दें। ज़ाहिर वालिदैन के एहसानात का बदला हम कैसे चुका सकते हैं, तो ये कि अगर किसी चीज़ में हम हिस्सा मिलाते हैं तो उन्हीं को मालिक कर देना चाहिए ताकि कल को कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। बेहतर ये सूरत नजर आती है कि जैसे कोई चीज आया, भाई एसी मुश्तरका पैसों से आ रहा है, सही, तो पता है कि मेरे ही पैसे लगने हैं और बाद में फिर ये झगड़े ना हो। हाँ। तो एहतियातन यूं कर लें कि एसी में खर्चा कितना आ रहा है, भाई 60,000 रुपए का खर्चा है, सही, ये 10,000 रुपए मेरी तरफ से अब्बू याना आपको पेश करता हूँ, ये मेरी तरफ से आपको गिफ्ट है। सही। तो दूसरा भी 10-15,000 उसने भी दे दिए, भाई ये मेरी तरफ फायदा तो सभी उठाएंगे उसका। अब इसमें यह कि वालिद साहब की अगर मिल्कियत, सरबराह की मिल्कियत में अगर वो रकम दे दें, फिर वो उस रकम से जब कोई बड़ी कोई चीज लेकर आते हैं तो वही उसके मालिक होंगे बाद वफात। फिर उसकी तकसीम कारी या जो भी तरके में जहाँ बहुत सारी चीजों की लागत लगाई जाती है तो वहाँ इस तरह के बड़े खर्चे की जो भी अमाउंट बनती है उसको भी लगाया जाएगा। इनके सवाल में यह था कि कौन सी कीमत लगाई जाएगी, तो तरके के सूरत में जो उस चीज की इस वक्त की मौजूदा वैल्यू होती। अब एसी अगर 60,000 रुपए तक का लगाया था और 10 साल 12 साल तक अगर वो चलता है, उसके बाद उसकी वैल्यू जो भी रह जाती है वो उसकी वैल्यू है। सही। मजीद चल के नाज़रीन आपके SMS की भी लाइन लगी हुई है, इंशाल्लाह देखें क्या होता है, कॉल्स मजीद लेंगे। हकमैन गाँव की मौजूदगी में निकाह के टाइम पे अदा कर दिया, शादी के तीसरे दिन वही पैसे ना मेरी वाइफ ने मुझे दे दिए वापस, मैंने मांगे नहीं थे, तो उसने कहा मुझे फलां चीज ला दो, मैंने वो चीज अभी तक ला के नहीं दी, क्या मुझ पर हुक्म क्या होगा? यानी इन्होंने एक काम तो कर दिया है कि मेहर सारा का सारा जो भी था वो दे दिया है, ये बरी जिम्मा हो गए। खातूने खाना ने कोई चीज मंगाने के लिए कोई रकम इनको दे दी है कि फला चीज आप लेकर आ जाए। अब ये नया बोझ इन्होंने पाल लिया है, वो चीज लाकर नहीं दे रहे, अब ये रकम पता नहीं खत्म हो गई, खर्च हो गई या टाल मटोल से काम ले रहे हैं, तो इस तरह ना करें। सही। जो रकम आपने मेहर के तौर पे दे दी और उन्होंने फिर किसी खास चीज के बनवाने के लिए, आमतौर पे जेवरात वगैरह बनवाने के लिए कुछ ना कुछ दिए होंगे कि ये कर दें, मेरा ये बनवा दें अब इसका, तो अब ये टाल मटोली से काम ले रहे हैं, तो इस तरह करने की इन्हें इजाजत नहीं होगी। और अगर बीवी की तरफ से ये है कि इग्नोर कर रही है, ठीक है आप फिर आराम से दे देना, तो फिर तो गुंजाइश होगी। लेकिन अगर उसका मुतालबा है कि मुझे चाहिए
और मर्द टाल मटोली से काम ले रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। सही। तो बार बार ये फिर छोटी छोटी ये इस तरह की बातें भी नोक झोंक और रिश्ते में दरार पैदा होती है। जब तक माहौल अगर खुशगवार है तो ये चीजें मतलब वो छेड़छाड़ वाले उसमें किसी हद तक होंगे, लेकिन जब पैसों का मामला है तो पैसों के मामले में ज्यादा इस तरह इसको लेंथी ना करें। जल्द अज जल्द जिस चीज का उन्होंने आपको पैसे जिस काम के लिए पेश किए थे तो वो चीज अगर जायज है तो जरूर लाकर दे दें और अपने जिम्मे से ये बोझ उतार दें। जैसे शुरू सवालात के अंदर मैंने कहा था कि अगर आप अपना बोझ नहीं उतारेंगे तो कौन उतारेगा? तो आपका ये बोझ आपके वरसा उतार दें, ये आपकी खाम ख्याली है। सही। क्यों? वरसा भी आपके किरदार को देख चुके होंगे। सही। कि कर्ज खाता है, लेता है, अदा नहीं करता, तो इसी ने कर्ज दिया था, आखिरत में इसी की पकड़ होगी, हम क्यों अदा करें? तो भारत इस तरह के मसाइल होते हैं। तो आप बेहतर ये है कि अपने बच्चों की अम्मी को आप जो चीज़ उन्होंने मेहर की रकम आपको दी है और जो चीज़ मंगवाई है जायज़ चीज़ है तो उनको ला कर दे दें। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे। यकीनन अल्लाह ताला से हम दुआ ही कर सकते हैं कि दुनिया से इस हाल में हम रुखसत हों कि हुकूकुल्लाह यानी अल्लाह ताला के जो हुकूक हैं और हुकूकुल इबाद में से कोई बोझ हमारे ऊपर ना हो। एक जी अगली कॉल। सोहेल नाम है मेरा, कराची में जो आगरा से बात कर। सवाल ये है कि ये मेरे बच्चे ने ना अभी अपनी वाइफ को तलाक दी है तो उसका अपना लिखा हो तो 50,000 रुपए, तो अभी उसके पास है नहीं है, वो किस तरीके से अदा करेगा? जी हज़रत, घर टूट चुका है और 50,000 रुपए देने हैं, पैसे हैं नहीं। देखें अभी ये औरत का हक था, उसको मेहर दिया जाता तो आमतौर पे उसकी कोई लिमिट नहीं होती। जब तक निकाह बरकरार है तो शोहर को ये रियायत मिल जाती है कि वो दे दे, सहूलत से दे। लेकिन जब वो तलाक हो जाए तो फिर अब मेहर की अदायगी तो बिल्कुल देनी होती है, इसके बगैर। अब इसमें यह है कि जिस तरह कुरान पाक में है कि अगर कोई तंगदस्त है तो उसको मोहलत दें। सही। तो अगर वाकईतन शोहर की कैफियत ऐसी है कि वो बर वक्त मेहर अदा करने की पोजीशन ही नहीं है और मेहर 50,000 रुपए की एक रकम एक आम तबके के लिए बड़ी भारी रकम है, तो अब इस रकम की अदायगी फिलफौर अगर शोहर के लिए दुश्वार है तो औरत को चाहिए कि अपने शोहर के लिए इस मामले में मोहलत दे और जो भी मोहलत देना चाहे जिसमें बासानी शोहर मेहर अदा कर सकता हो, तो शोहर को भी चाहिए कि ये हक शोहर के ऊपर चूंकि लाजिम है, औरत का हक है, तो इसके लिए जहां दीगर बड़े कामों के लिए भी आदमी कर्ज लेकर दे देता है, अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें बेचकर अपनी बड़ी किसी ज़रूरत के लिए पैसे जमा कर लेता है, तो औरत का ये हक है इसकी अदायगी के लिए ये अपनी ज़रूरत से ज़ायद चीज़ें तो ये बेचे और या कहीं से कर्ज हसना मिलता है तो कर्ज हसना लेकर ये औरत के हक की अदायगी जल्द अज जल्द करे। और औरत को भी चाहिए कि अगर शोहर की ऐसी पोजीशन माली नहीं है कि फिलफौर मेहर अदा कर सके तो मोहलत दे। सही। अच्छा, हक मेहर के हवाले से गुफ्तगू चल रही है, SMS भी इस हवाले से हमें आ रहे हैं। SMS ये है कि हक मेहर का मुकर्रर करना, ये हक किसका है, कौन करेगा इसको मुकर्रर? ये समझे मर्द और औरत इन दोनों के अंदर ये एक हक है ना। सही। तो औरत की तरफ से जो उसके वली और सरपरस्त होते हैं वो औरत का मेहर आम तौर पे वही डिसाइड करते हैं। औरत के इल्म में ले आते हैं कि भैया तुम्हारा मेहर 25,000 50,000 इतना हम रख रहे हैं। औरतों की तरफ से आमतौर पे ये डिमांड नहीं होता कि हमारा मेहर हमसे पूछ कर रखा जाए, कितना रखना है पहले मुझसे पूछना, फिर मैं जो ओके करूंगी वो ही रखना। नहीं होता। तो हमारे यहाँ पे इस तरह की कोई भी खातून आज तक सुनाई नहीं गई कि ऐसा होता हो। तो अब ये काम होता है लड़की के जो सरपरस्त वली हैं, और लड़की के सरपरस्त और वली को चाहिए कि लड़की का मेहर मुकर्रर करते हुए वो मेहर मिसल को मद्देनजर रखे। मेहर मिसल की तारीफ ये है कि औरत की जो अपने ददियाल में जो फूफी है या चचा ताया की बेटियां हैं या इसकी अपनी खुद बहन है, तो इन्हीं सालों में इन्हीं दिनों में इसी मौसम या इसी वक्त में जो मेहर उनका रखा गया था या चल रहा है, तो वो मेहर
इसी लड़की का होगा। और वो बकिया जो खवातीन जिनका जिक्र किया जा रहा है कि उनका मेहर, तो वो हुस्न व जमाल और दीगर बहुत सारी चीज़ों में ये एक जैसी हों। सही है। तो उमर रसीदा का मेहर कम हो सकता है, नौजवान लड़की का मेहर ज़्यादा हो सकता है। तो इस तरह ये सारी चीज़ों का उम्र वगैरह का लिहाज हो, तो जो मेहर उनका हो, इस तरह का जो मेहर होता है मेहर मिसल है, तो ये मेहर मिसल से कम मुकर्रर ना करें। अगर किसी खानदान में 25,000 मेहर मिसल है तो 25,000 से 20,000 ना करें, 25 ही रखें। सही है। अब लड़के वालों को बता दें भाई हमारी तरफ से हमारा जो मेहर मिसल खानदान में चल रहा है, आमतौर पे खानदान वाले मेहर को थोड़ा सा वो स्टैंडर्ड भी बनाया जाता है। सही है। तो इतना मेहर होगा तो लड़के वालों को बता दिया जाए। लड़के वाले अगर एग्री करते हैं, लड़के वालों से मुराद लड़के का जो सरपरस्त है, आमतौर पे ये बड़े अफराद ही डील कर रहे होते हैं, तो उनको भी चाहिए कि बहुत ज्यादा अगर मेहर मुकर्रर किया जा रहा है लड़की वालों की तरफ से मेहर मिसल से भी जायद, तो देना लड़के को है तो लड़के के इल्म में ले आए। सही है। ये ना हो कि अब्बा जी ने जो कह दिया जबान दे दी, ठीक है भाई तुमने 1 लाख के बोला, 1 लाख ही मेहर होगा। सही। अभी बेचारे शोहर को पता ही नहीं है वहाँ क्या जबान देकर आ गए। इधर काजी साहब ने जब इजाब कबूल के मौके पे कहा कि 1 लाख रुपए मेहर के बस आपका निकाह फलानी बिनते फला से किया, अब वो बेचारा कबूल करते करते हिचकिचा रहा है कि 1 लाख रुपए कैसे दूंगा, कहाँ से दूंगा। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। लड़के के इल्म में ले आए कि भाई इतना मेहर लड़की वालों की तरफ से डिमांड है, तुम दे सकते हो। अगर लड़का देने की ताकत रखता है तो वो हाँ कर लेगा, अगर वो कमी की गुंजाइश निकलवाता है तो देख लें। लड़की वालों को चाहिए कि मेहर मिसल से कम ना रखें। सही। ये वली के सरपरस्त को चाहिए, लेकिन अगर कम रखता है और लड़की भी इस पे राजी है, लड़की का सरपरस्त वली भी राजी है, तो शरन इसमें भी कोई हरज नहीं है। कम से कम जो मेहर है वो 2 तोला 7.5 माशे चांदी या निकाह के वक्त जो इसकी कीमत बनती है, ठीक है, ये कम से कम मेहर है। ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। जी, बड़ा तफसील से हमें इस हवाले से भी जवाब मिला कि ये किसकी जिम्मेदारी होती है और इसको मुफ्ती साहब ने बयान फरमाया। जी, अगली कॉल लेंगे हम। मसला ये है कि एक लड़के के भाई ने दिया है, उस वक्त फर्नीचर दिया था लड़की को, तो जिस वक्त उसकी तलाक हो गई है तो उसने कहा भाई मैं वो वापस लूंगा, क्या ये शरन वापस हो सकता है या कि नहीं? जी भाई, ये भी एक मसला है। चीज लड़के के भाई ने फर्नीचर दिया है, तो देखें अगर फर्नीचर देकर लड़की को कब्जा दे दिया है, मालिक बना दिया है, तो नॉर्मल उसके घर में वो आ गई भाई के शादी होकर भाभी, तो उसके हैंड ओवर सारा आमतौर पे हो जाता है, जेवर जहेज वगैरह का जो भी फर्नीचर है। तो अगर औरत ने कब्जा कर लिया है तो उसकी मिल्कियत हो गई। अगर वो गिफ्ट दिया था, मालिक बना दिया था, तो औरत मालिक हो गई। अब तलाक की सूरत में फिर ये मुतालबा हो रहा है कि हमारा ये दिया हुआ जहेज का सामान जो हमने फर्नीचर दिया था वो वापस करो। तो गिफ्ट देकर, तोहफा देकर, जबकि तोहफा देकर उसको कब्जा देकर मालिक कर दिया गया हो, तो वापसी का मुतालबा करना ये शरअन नाजायज मकरूह है, तहरीमी है। ठीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तोहफा देकर वापस लेने वाले की जो मिसाल बयान की है, फरमाया गया ऐसे शख्स की मिसाल यूं है जैसे किसी कुत्ते ने क़े की वोमिटिंग उल्टी हुई और वो कुत्ता फिर उसको चाटे, तो जिस तरह वो चाटता है कितना मायूब और बुरा फेल है। तो तोहफा देकर मालिक बनाकर फिर बंदा वही चीज किसी भी वजह से अनबन होने की सूरत में वापसी मांगता है, तो इसका ये अमल नाजायज और मकरूह तहरीमी है। तो अगर तोहफा देकर दिया था तो फिर वापसी नहीं ले सकते, और अगर तोहफा देकर नहीं दिया था बल्कि वैसे ही कि आप ठीक है हमारे घर में आप फर्नीचर ना लाएं, मैं अरेंज कर दूंगा ये, लेकिन होगा मेरी ही मिल्क में, आप सिर्फ इसको इस्तेमाल करें। सही। तो ये आरियतन देने वाली चीजों की तरह अगर इसको लिया गया है तो देने वाला वो मालिक ही रहेगा। तलाक की सूरत में वो वापसी ले भी सकता है। तो ये देख लिया जाए कि देने वाले ने किस नीयत से दिया था। अगर तोहफा देकर दिया है फर्नीचर भाभी को तो उन्होंने कब्जा कर लिया, वो मालिक हो गई, वापसी लेना ये नाजायज अमल है। फिर भी अगर कोई जिद पे अड़ा हुआ कि नहीं भाई मुझे तो वापसी चाहिए, और भाभी और इसके दरमियान कोई जी रहम महरम और इस तरह का कोई रिश्ता भी नहीं है, तो ये वापसी लेने का मुतालबा अगर करता है तो औरत वापसी
दे दे, लेकिन मामला ये है कि ये इससे बचना चाहिए। नहीं, गुफ्तगू से हम ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शरीयत के अंदर यानी हमारे मुंह से किसी बात का निकलना, ज़बान का इस्तेमाल, जैसे हम कहते हैं तीर कमान से निकल गया, हमने किसी को कहा भी मैंने आपको तोहफे में दिया, आप भी इससे रुजू मतलब कितनी सख्त एक मिसाल जबान पे मतलब कायम रहे। हाँ। जायज़ बात कही है तो फिर उस जायज़ बात पे बरकरार रहे। हाँ, नाजायज़ बात पे आदमी रुजू करे। सही कि मैंने गलत बोल दिया, मैं माफ़ी मांगता हूँ, किसी की दिल आज़ारी कर दी उसमें माफ़ी मांगता हूँ। तो अगर तोहफे वगैरह का इस तरह का मामला है तो इसमें दे दिया तो फिर वापसी नहीं लेना चाहिए, ये मायूब चीज़ है। ठीक जी, अगली कॉल लेंगे। मरकजुल औलिया लाहौर से अब्दुल कयूम अत्तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में सवाल है कि वलीमा कितने दिनों के अंदर अंदर किया जा सकता है? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, वलीमा निकाह के बाद जब मर्द और औरत में मुलाकात हो जाती है, रुखसती हो जाती है औरत की, तो उसके बाद अगले दिन या उससे अगले दिन यानी निकाह के बाद जब रुखसती हो गई तो रुखसती के 2 दिन के अंदर अंदर वलीमा ये होना ये मसनून है, सुन्नत है। तो अगर कोई हफ्ते का गैप लाता है तो इससे सुन्नत की अदायगी नहीं होती। बाज़ औक़ात इतना तो हॉल या इस तरह का जो हमारी एक ट्रेंड चल रहा है नहीं मिलते हैं, लोग फिर उसको लंबा कर लेते हैं। तो वो रस्म वलीमा है, सुन्नत वलीमा, वो उसका एक टाइम पीरियड है। तो अब ऐसे में अगर बड़े पैमाने पे जो वलीमे की दावत वो एक हफ्ते बाद ही शादी हाल हो गई, ये मसाइल हैं, तो लड़के को चाहिए कि सुन्नत वलीमा के लिए इतने बड़े पैमाने पे एहतिमाम करना ये सुन्नत वलीमा के लिए ज़रूरी नहीं है। अब ऐसे में यूं कर सकता है कि अपने चंद दोस्त अहबाब, अपने कजन्स घर के अंदर दोस्तों की ज़ियाफ़त कर ले और उसको सुन्नत वलीमा का नाम दे दे। तो यूं भी सुन्नत वलीमा अदा हो जाएगी। कोई बहुत बड़ी मिकदार में खिलाना या बड़ी तादाद को खिलाना ये सुन्नत वलीमा के उसमें शामिल नहीं है। अपने दोस्तों अहबाब की ज़ियाफ़त एक खुशी जो नेमत अल्लाह ताला की तरफ से एक मर्द को निकाह की सूरत में और एक बीवी की सूरत में जो इसको मिली है, रिश्ता कायम हुआ है, तो इस नेमत के शुक्राने में अपने दोस्तों अहबाब की खुशी में ज़ियाफ़त करे। तो इसके लिए वो अगले दिन ही अपने दोस्तों की कोई मुख्तसर सी दावत रख ले खाने पीने की, तो यूं भी वलीमा अदा हो जाए। जी, मजीद कौन? मुफ्ती साहब की बारगाह में अर्ज है कि मैं वेल्डिंग का काम करता हूं और ट्रैक्टर मैकेनिक कोई बॉडी पार्ट्स खोल कर हमारे पास लेकर आता है कि मुरम्मत कर दें या वेल्डिंग कर दें, दरमियान में से मुझे कमीशन भी दे दे, मालिक को पता ना चले। क्या ऐसा करना दुरुस्त है? हमारी रहनुमाई फरमा दें। जी, क्या फरमाएंगे? हो सकता है ये तनख्वाह पे काम करते हो, नौकरी हो। देखें, इस वक्त जो इनके सवाल से जाहिर है कि ट्रैक्टर का कोई भी पुर्जा लेकर वो इनके पास आता है कि इसको वेल्डिंग कर दें, कितना खर्चा होगा? वो कहेगा मैं 2000 रुपये। तो अब वो कहेगा कि ठीक है, काम लेकर आया हूँ आपके लिए, तो आप इसमें से मुझे कमीशन दें, यानी आप इसको 2200 में करें, 200 मुझे कमीशन दें, या 2000 में आपने बताया है तो मैं आपको दूंगा 1800, लेकिन आप 2200 मेरे लिए छोड़ दें तो मैं मालिक से 2000 में ले लूँगा। तो शरअन ऐसा करना जायज़ नहीं है, क्योंकि इस वक्त जो मैकेनिक के पास या वेल्डर के पास जो भी शख्स पहुंचा है तो वो उस वेल्डर से एक काम ले रहा है कि भाई ये पुर्जा ख़राब हो गया, इसकी वेल्डिंग कर दें, तो कितने की करेंगे, इतने की करेंगे। तो ये दोनों आपस में एक तरह से आकिदेन हैं, आकिदेन मुआहिदा करने वाले हैं, काम करने वाले हैं। तो रेट तय करने के बाद जो काम करवाया जाएगा तो एक मुआहिदे के तहत करवाया जाएगा। तो इन दोनों की हैसियत आकिदेन की है, और आकिदेन किसी भी अक़द इजारा या अक़द ख़रीदो फ़रोख्त के ज़रिए से वो कमीशन का एक दूसरे के लिए हकदार नहीं होते। सही कि मैंने चूँकि आपके लिए काम लेकर आया हूँ, तो काम लेकर नहीं आए, ये आपको मालिक ने कहा है कि आप जाके काम करें। अब आप आकिद हो गए, सही, और अक़द करने वाले हो गए, तो आप वेल्डर से कमीशन नहीं ले सकते। सही है। हाँ, आप मालिक का काम कर रहे हैं
اس کے لیے آپ کو ایکسٹرا محنت کرنی پڑ رہی ہے تو آپ مالک سے کہہ سکتے ہیں کہ اس کے لیے دیکھیں مجھے یہ محنت کرنی پڑے گی تو اس محنت کے مجھے 500 روپے دیں. صحیح. الگ سے جو بھی ہوتا ہے جو تنخواہ چل رہی ہے وہ تو ٹھیک ہے، لیکن یہ الگ سے کام میرے ذمہ آیا ہے تو اس کے لیے مجھے یوں کریں. نارملی ان کے جیسے ڈرائیور ہیں تو ہو سکتا ہے ڈرائیوروں کے کام میں من جملہ سارے کاموں میں سے یہ سب کام ہے، ٹریکٹر سے متعلق جو بھی ٹوٹ پھوٹ صحیح کروانی ہوگی یہ سب آپ ہی کریں گے، آپ کی لگی بندی. اتنی تنخواہ ہے 50,000 روپے 30,000 روپے، بس اسی میں سارے کام کرنے ہیں. تو اب یہ جو ان کا کمیشن لینے کا عمل جو مثال انہوں نے دی ہے اس طرح وہ کمیشن لیتا ہے اور مالک کو بتانا نہیں ہے کہ کمیشن بھی لے رہا ہے، تو یہ دل میں چور ہے جو بتانا نہیں ہے. صحیح ہے. اگر یہ کہے مالک کو بتائے کہ وہ جو ہے نا وہ اس کو میں نے 1800 روپے دیے ہیں، آپ سے 2000 لے کے میں اس کو 1800 دوں گا، 200 رکھوں گا. صحیح. یہ کہنے کی اس ڈرائیور کو ہمت کیوں نہیں ہے؟ اسی لیے نہیں ہے کہ یہ چوری کا ایک سلسلہ ہے، یہ کمیشن جائز نہیں ہے. اگر جائز ہوتا تو کبھی بھی آدمی سچ بولنے میں گھبراتا نہیں ہے. صحیح. گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے؟ حدیث مبارکہ میں فرمایا گیا کہ نیکی وہ ہے جس پر دلی اطمینان ہو جاتا ہے، خوشی ہوتی ہے، دل مطمئن ہوتا ہے کہ میں نے ایک بہت اچھا کام کیا ہے. اور گناہ وہ ہوتا ہے ما حاکا فی نفسک، جو تیرے دل میں کھٹکے. اب کبھی بھی یہ اس چیز کو ذہن میں رکھے گا، کبھی بھی اگر مالک نے ویلڈر سے ڈائریکٹ ہو گیا ہاں بھئی آپ نے کتنے کا کام کروایا، صحیح، تو یہ ڈرے گا کہ ویلڈر سے یہ کہے گا تم نے جو نا اتنے بولنے، میں مالک سے اتنے لے رہا ہوں تم نے اتنے بولنے، اس کی ذہن سازی کرے گا کہ اتنے کا ہی کام ہوا تھا کہ کم میں نہیں ہوا تھا. وہی ڈر خوف کس بات کا؟ یہ اسی چیز کا ڈر خوف ہے کہ آپ چور بازاری کا ایک چھوٹا سا یہ عمل کر رہے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا وقت مکمل ہو گیا. بہت ساری کالز SMS باقی ہیں. آج جو گفتگو ہوئی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارا سلسلہ قبول فرمائے، جو ہم نے سنا ہے جو سیکھا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نہ جانے مسائل تو علماء سے پوچھیں، یہ حکم مبین ہم کو رب سے ملا ہے. چلو پوچھ کیسے جیے زندگی کو، چلو پوچھ لے کس میں رب کی رضا ہے، رب کی رضا ہے.